शक्ल देख के करते हैं जस्टिस भी। वही मास्टरमाइंड था इस सब के पीछे। മീറ്റിംഗിൽ എക്സ്റ്റേണൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത ഫ്രെയിംവർക്ക് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് സർ വി ഓൾ അഗ്രി ടു ദിസ് ഫ്രെയിംവർക്ക് റൈറ്റ്? ये टीचर ही कमीने वो जानबूझ के ഈ മന്ത് എന്തെങ്കിലും ഇത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇനി ഒരു വർഷം കൂടി നഷ്ടമാവും സർ. പ്ലീസ് സർ. ये जानबूझ के उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे असाइनमेंट वगैरह जो भी फ्रेमवर्क थे. അമിത് സർ മരിച്ചതിന് ശേഷം പകരം വന്ന സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാം ഞാൻ റീവർക്ക് ചെയ്തില്ല സർ. वो ये चाहते नहीं थे कम्युनिटी टीचर ना कि मतलब ये पीएचडी कर पाए यहाँ से. कैसे हंस रहा? പണ്ട് ഇവിടെ ഇതേ ജോലിക്കാരിയായിരുന്നു. ഇനി അവരുടെ മകളും ഇതേ ജോലി തന്നെ ഇവിടെ ചെയ്യും. അതേ ചെയ്യൂ. ചിലപ്പോ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകും. പക്ഷെ ഒരിക്കൽ പോലും ഭക്ഷണം കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് അവര് പരാതി. ഈസ് അബൌട്ട് ക്വാളിറ്റി. അതെങ്ങനാ പാടത്തും പറമ്പിലും കുപ്പത്തൊട്ടിയിലൊക്കെ പണിയെടുക്കുന്നവരോട്? उसकी कास्ट की वजह से उसके साथ वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है. നേരത്തെ പറഞ്ഞ 2.5 കോടിയുടെ സാങ്ഷൻ ആയ പ്രോജക്റ്റും എല്ലാം ഈ കുപ്പത്തൊട്ടിയിലെ ക്വാളിറ്റിയിൽ നിന്നാ സർ ഞാൻ ചെയ്തിട്ട്. അതെങ്ങനാ കണ്ടവന്റെ കക്കൂസ് കഴുകുന്നവർക്കൊക്കെ ഓരോ പേരും പറഞ്ഞ് ഇവിടെ അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കുന്ന. ആൻഡ് മൈൻഡ് യു 7 അല്ല 10 വർഷം കഴിഞ്ഞാലും നീയൊക്കെ ഇവിടുന്ന് പഠിച്ച് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങണം. कितना कमीना भयंकर. yourself in the mirror. പോയി കണ്ണാടി നോക്കടി. से मजबूर किया गया सुसाइड करने के लिए. कितनी गिरी मेंटालिटी उसकी. ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ അവളുടെ സ്വപ്നങ്ങളെ അവളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ എന്തിന് അവളെ തന്നെ. She quit. No, she did not quit. She was forced to quit. उसको फोर्स किया गया था. This is a report about all the students who quit their lives and their careers in this campus. अच्छा उसने भी सेम आवाज उठाई थी वहाँ. तो जो वो 52 लोग जो है ना 52 स्टूडेंट्स उनके साथ भी ऐसे किया उन्होंने. നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉത്തരം പറഞ്ഞേ മതിയാവും. माइनर कम्युनिटी के. And an inquiry commission gets set up on the death of all 52 कैसे डर रहा देखो. Sabha, this comes to the demand put forward by Professor Sabha. कोई हाथ खड़ा नहीं करे. बात ये है ना कि वहाँ सब एक ही बैकग्राउंड के हैं. മേളിൽ മറ്റാരെക്കാൾ അധികാരം അവകാശമുള്ള ടീച്ചർ DYSP ബ്രിജേഷ് കല്ലപ്പയ്ക്ക് പ്രൊഫസർ. ഇനി ഈ പരാതി ആരുടെ മുന്നിലാണ് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് ഇതിൽ ഒരാളുടെ പേര് കൂടി ഗവർണർക്ക് അയക്കാനായില്ല. അവർ മരിച്ചു, കൊല്ലപ്പെട്ടു. इसने बात आगे पहुंचा दी होगी ना. Sabha, relax. Everything will be taken care of. That includes your promotion too. कैसे लाभ दे रहा है. I can talk to the VC. Yes. താൻ ആരാണോ? പ്രൊമോഷൻ. ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗേറ്റ് കടന്ന് 200 മീറ്റർ മുന്നോട്ട്. ഇനി ഇവിടെ ഒരു വിദ്യ ഉണ്ടാവില്ല. അതിന് ഇനി ഇവിടെ ഒരു വൈദർശനം ഉണ്ടാവരുത്. इन्होंने कुछ किया होगा पक्का. ऐसे टीचर ने किया होगा कुछ. स्कूटी खराब हो गई. सुनसान सड़क है वो. उसका पीछा कर रहा है. इसीलिए किया शायद उसकी स्कूटी का कुछ.
क्या करेगा ये? इसने उसके बिठाया पास जा रही है तो गाड़ी पे। उसको सारा लात तो नहीं देगा। अच्छा इसी ने मारा उसे। उसने उसकी गाड़ी चला दी। कितना कमीना था भयंकर ये। माय गॉड। അബ്സല്യൂട്ട് പേഴ്സണൽ റീസൺസ് കാരണമുണ്ടായ ഒരു മിയർ ഹിറ്റ് ആൻഡ് റൺ കേസ് തൊട്ടടുത്ത ദിവസത്തെ നാഷണൽ ഹെഡ് मीडिया वालों ने उसे नहीं रुपए देंगे ना मीडिया वालों के साथ हो सकता है। ആഴ്ചകളോളം ചാനലുകളിലും പത്രങ്ങളിലും ഓൺലൈൻ മീഡിയകളിലും ഈ വാർത്ത ട്രെൻഡിംഗ് ആയി. वही तो एक ही खबर कैसे बनी ट्रेंडिंग में। ഇത് മാത്രമാക്കി वही तो। ആർക്ക് വേണ്ടി? 9 अगस्त का दिखा रहे हैं 10 उसी दिन बजे। ये कौन? अच्छा उस समय दिखाया था उस समय ना शुरुआत में। ఓకే డాక్టర్ पुलिस ऑफिसर పాప జాగ్రత్తగా కుట్టుకోమా अब दिखा रहे हैं उस दिन क्या क्या हुआ था ना। हाँ സർ ഐ ബി റിപ്പോർട്ട്സ് ആണ്. വരാനിരിക്കുന്ന അസംബ്ലി ഇലക്ഷൻസിൽ പാർട്ടിക്ക് ഭരണം നഷ്ടം. सर आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम सेंट्रल यूनिवर्सिटी. अच्छा इन्होंने चुनावी फायदे के लिए उसे इस तरह से बना दिया उस केस को। अच्छा మైనింగ్ స్కామ్ హెలికాప్టర్ స్కామ్ இந்த எலெக்ஷன்ல வின் பண்ணா நான் தான். कैसे होते नहीं तक कुर्सी पे हेलो सर कैन यू हियर मी. மூஞ்சு முகர கட்டிங்க हेलो सर है ബോഡി വെറുതെ നമ്പർ ഇട്ട് മോർച്ച इसने वोटा बताया था। अच्छा यही मिला था। इसने तो रची थी साजिश पूरी। ഓക്കെ इसने आइडिया दिया था उसे कि ये सब कर। ഓൾറൈറ്റ് സർ. 8 കോടി വരുന്ന ഈ സംസ്ഥാനത്തിലെ ऐसे तो पूरा मालूम था वो लोग बेकसूर हैं। अब फिर भी इसने जानबूझ के मारा उन्हें। सो शैल वी. कैसे ये? रूपेश सर यू हैंडल द मीडिया एंड पीआर. ఓకే సార్ मैटर मुड़ी నాకు और तब उन्होंने इन्हें फंसाया। इस तरह की कहानी बना दी थी फिर। किस तरह से रची उन्होंने साजिश। अच्छा ये जानबूझ के किया गया था ये भी। हो सकता है। इन्हें केवल उन्होंने जलाने का काम दिया बस। हाँ उनको नहीं था पता कुछ भी। कोई नहीं है. वही मास्टरमाइंड था इस सब के पीछे। तब दिया था इसने चार्ज है। तब जानबूझ के भेजा था जांच करने के लिए। సజన్ కుమార్ రెడీ టు టేక్ చార్జ్. హీరో ఎంట్రీకుள்ள సమయമായി అల్ల. अच्छा इससे नहीं बोला था मारने के लिए भी। इसने ऑर्डर दिया था। சொல்லுங்க சார். ആ കോളേജ് പിള്ളേരെ തല്ലി ഒതുക്കി. ஓகே சார் ஓகே. उस समय लग रहा था जैसे कितना ईमानदार पुलिस वाला हो गए। हाँ जैसे वो पकड़े गए तो सारे न्यूज़ चैनल पे वो खबर पहुंच गई थी। और वो दिखा कैसे रहा था जैसे हाँ उनको बोल रहा था जो उसके कलीग थे। और खुद ही उसने लीक की थी। ന്യൂസ് ലീക്ക് ആയത് സർ ആൻഡ് വി ഹാഡ് ഫ്രം ദ ആരാണ് കൂടെ വന്ന് ഒറ്റിയത്? സി सब इसे हीरो समझ रहे थे। तभी वो ऐसे सवाल कर रहा था ना।
मतलब पहले सारी चीजें समझाई ना, क्योंकि रेप हुआ ही नहीं था एक्चुअल में, वो तो हिट एंड रन था। असली दोषी तो यही है, सबसे बड़ा क्रिमिनल। जे और वो प्रोफेसर, ये दो। बिना प्रूफ तो नहीं किया गया वो। सबूत भी है इसके पास। सबूत है तो कौन से होंगे इसके पास? ये है जिसके साथ रहता था हवलदार। अच्छा, इसने कुछ देखा शायद। हाँ एनकाउंटर। अच्छा, वो टॉप से ऑर्डर हो। മുകളിൽ നിന്നൊരു ഓർഡർ. उसी का था वो, उसी क्या मुख्यमंत्री था ना? अच्छा, इसका। आई एम सॉरी सजन। जो उसके ऊपर था, उसका बॉस। ഇവിടെ നിന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യവാ. ആരാ സർ? യാരയ്യാ? യോ, அந்த 4 பேரையா வேகமா வண்டி ரெடியாக்கு. സർ നമ്മുടെ പോലീസ് വാൻ സർവീസ്. अच्छा, तब इसने सुना होगा ना? अच्छा സർ, DIG വിളിച്ചിരുന്നു, കേസിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ പറഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോ DIGക്ക് ഹോം സെക്രട്ടറി. अच्छा, उससे उसने कहा कि इसे हटा दो। सॉरी सर। अब फिर इससे का पर्सनली मारने के लिए। सब ഇത് രാഷ്ട്രീയമാണ്. ഇവിടെ ജയിക്കാൻ എന്ത് കളിയും കളിക്കും. ഇവിടെ നോട്ട് നിരോധിക്കും. ഈ ഞാനുണ്ടാവും, ഈ പാർട്ടിയും. നിയുക്ത CM-ന്റെ വാക്കാണു ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം. അത് എന്നാണ് തെരിയുമോ ഉനക്ക്? വികാരം. ये जानता था ना कि इससे लोग बहुत खुश होंगे और फिर मुझे वोट मिलेंगे. മാറ്റി മറിക്കുന്ന ഭ്രാന്ത്. ആ ഭ്രാന്ത് പിടിപെട്ട പിന്നെ അവർ പോകുന്ന ആ വികാരത്തിൽ നമ്മൾ പിടിച്ചെടുക്കും അധികാരം. സാർ എൻകൗണ്ടറാ? सुंदर, स्ट्रेट टू SMP स्टेशन. ഞങ്ങൾ എത്തിക്കണം. कॉपी. उनको तो फिर बेवजह में मारा गया है ना? വണ്ടി ലെഫ്റ്റ് എടുത്ത് ബീക്കണോ. मारेगा वो एक एक करके सबको. क्या कमाल. अच्छा, उसको भी सिगरेट पिलाई थी इसने लास्ट में भरने से पहले. जबकि इन्होंने तो कुछ किया भी नहीं था. एक कमरे में बंद निकाल दो उसने गाना, शूट करेगा उसे तो. ये लोग पहले कितना डर रहा था नहीं? ये तो पहले डर रहा था. इस पे भी गोली मारी थी. इस पे तो जानू से मारी थी ना, उसमें लगे कि एनकाउंटर ही था. हाँ. ഇൻസ്റ്റഗ്രാം, ട്വിറ്റർ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലേ? ഒരു തെളിവും വേണ്ട. ആ 4 പേരെ കൊന്നപ്പോ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അത് ആഘോഷമാക്കിയത് നീതി നടപ്പാക്കി കാണാനുള്ള ഒടുക്കത്തെ പൊതുബോധ. കൊലകൾ ചെയ്ത എത്രയോ പേർ നമുക്കിടയിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. തൊടില്ല, തൊടാൻ ധൈര്യപ്പെടില്ല ഒരുത്തനും. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ ഇമ്പോസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഐഡന്റിറ്റി, ബിക്കോസ് യുവർ ഐഡന്റിറ്റി ഇസ് ദാറ്റ്
പോലെ ഫെയർ അഗ്ലി എന്ന് വേർതിരിച്ച് കാണിച്ച് ഒരു 6 വയസ്സുകാരന്റെ മനസ്സിൽ അവനെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കുന്ന നിറത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം, ജാതിയുടെ രാഷ്ട്രീയം. शक्ल देख के करते हैं जस्टिस भी. അതങ്ങ് യു പിയിലല്ലേ? പോലീസ് മർദ്ദനമേറ്റ് കസ്റ്റഡിയിൽ വെച്ച് 2 പേർ കൊല്ലപ്പെടുന്നു. അതങ്ങ് ത്തിലല്ലേ? അല്ല, ഇതെല്ലാം നടന്നത് ഇന്ത്യയിലാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഒറ്റ കാരണമേ ഉള്ളൂ. വിദ്യ എന്ന പെൺകുട്ടി അവളുടെ ഡെത്ത് നോട്ടിൽ അവസാനമായി കുറിച്ച വാക്കുകൾ, മൈ ബർത്ത് indeed their mistake. And finally, after all this, എന്തിന്? Which says that വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഈ സർക്കാരിന് അധികാരം നഷ്ടമാകും. അധികാരം 4 പേരെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ, ഒടുവിൽ അതേ 4 പേരെ കൊന്നുകളയാനുള്ള ധൈര്യം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി? ഒരു പട്ടിയെ കൊന്നാൽ ചോദിക്കാൻ, ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നവരെ നിശബ്ദരാക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയം, വിരൽ ചൂണ്ടുന്നവരെ വിലങ്ങണിയിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയം എന്റെയും തന്തയുടെ വകയല്ല. ഇത് നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്, നമ്മുടെ. कुछ बोल दिया उसने. सारी चीजें प्रूव कर दी उसने. And takes due cognizance of the allegations made by the defense counsel that there have been पुलिस वाले गाड़ी तोड़ने लग गए. to relieve the concerned police official from all official duties with immediate effect. ആ തീരുമാനങ്ങൾ പക്ഷെ ഒരു നാൾ मुझे पॉलिटिशियन है पकड़ लेंगे शायद. वंडी नंबर ट्रेस பண்ணியாச்சு. ஆனா அந்த நம்பர் फेक है. उसने बोला था उसने. पॉलिटिशियन नहीं है. पॉलिटिशियन ने क्या बोला? എല്ലാം ധൈര്യത്തോടെ നേരിടണം. മകനൊന്നും സംഭവിക്കില്ല. You take care. किसी ने किया देखो. यहाँ पे तो ये भी समझ गया था कि उसके साथ गलत हुआ. ഇവിടെ ജയിക്കാൻ എന്ത് കളിയും കളിക്കും. കാരണം നേടിയെടുക്കാനുള്ളത് അധികാരമാണ്. इन्हें तो पकड़ा नहीं गया वे. കയ്യടികൾ കല്ലേറുകളാകുമ്പോഴും ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ തനിച്ച ചില വാക്കുകൾ എന്ത് പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് उसको इनाम. ആ ബോഡി വെറുതെ നമ്പർ ഇട്ട് खुद ही आ गया हेडलाइन में. तब नींद भी नहीं आती थी सर. सीरीज की बाइक में छोड़ दिया. अरे ऐसे उस समय लग गया था कि कर्मा वापस आ रहा है. ഒന്നും ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ലടോ. എനിക്ക് എന്റെ മോനെ വേണം. അത് കൊടുത്ത് എനിക്ക് എന്റെ മോനെ തിരിച്ചു വേണം. तो इसने क्या किया? अच्छा, इसी ने खुद इन्वेस्टिगेट किया था बाद में उस केस को. മൂർത്തി സർ, अच्छा ഔട്ട്സ്കർട്സിലെ ഹൈവേയിൽ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. ഹിറ്റ് ആൻഡ് റൺ ആണ്. ആ സിദ്ധ സർ ട്രാഫിക്കിൽ ഇരുന്ന് കിട്ടിയ ലിസ്റ്റാണ്. സാർ പറഞ്ഞ ടൈമിന്റെ 1. अच्छा, इससे भी मिला था वो. पकड़ भी लिया था उसने उसे. हैं? ആ സത്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഞാൻ കണ്ടെത്തിയ പേര്. इसको दे दी थी इसने फाइल फिर. है अच्छा इसने बोला था इसको भी. എനിക്കെതിരെ മൊഴി പറയണം. രാത്രിയെങ്കിലും സമാധാനമായിട്ടും ഉറങ്ങും. इस हिसाब से तो ये भी बेगुनाह है. इसको भी
यानी इसने पहले गलत किया पर इसे फिर अपनी गलती का एहसास हुआ है फिर सही जब भी इसके किया। जब इसके बच्चे एक्सीडेंट हुआ है आफ्टर 3 months। और फिर तब इसने डिसाइड किया कि मैं सब कुछ सही करूंगा, पहले मुझे खुद जेल जाना पड़े। अच्छा प्रोफेसर भी हो गया अब गिरफ्तार है। ये तो सबसे बड़ा हरामी। சார் நீங்க எப்படி சார் இருக்கீங்க? സമാധാനം ഉണ്ട് सर താൻ फिर ഏർപ്പാടാക്കിയ इसी ने विकेट വക്കീലുകൾ. का अच्छा പക്ഷെ തനി അതിന് അവർ വാദിച്ചത് ഉங்களோட കേസ് மட்டும் இல்ல சார், അവർ முடிச்சது അവரோட കേസ്. You are a gold medalist in law from Delhi University. Then why civil service? Swaminathan, Deputy Commissioner of Police. Oh. Sometimes the law will have to be enforced. अच्छा इससे पहले ये था Deputy Commissioner सही। पहले पुलिस में था ये। अच्छा ആ യൂണിഫോം തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ശിക്ഷിച്ചു. अच्छा अच्छा उनको भी फंसाया गया था। अच्छा अच्छा നിയമം തന്നെ അയാളുടെ കൈകളിൽ വിലങ്ങടിയിച്ചു. ഒരു മനിതൻ അവരുടെ வாழ்க்கை நான் பார்த்தேன். This is ridiculous. எனக்கு அரவிந்த் பார்த்தே ஆகணும். अच्छा उसकी वाइफ की भी डेथ हो गई थी। அரவிந்த் சுப்ரீம் கோர்ட் பெயில் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க. പത്മ ஆனா அந்த விலங்கு போட்ட கையில தான் இந்த கேஸ். സാറിനെ തോൽപ്പിച്ച നിയമം കൊണ്ട് തന്നെ സാർ പകരം ചോദിക്കണം. Nomination day February 2020। अब आ रहा हुआ है बेटा। ये वही है, जीत तो नहीं गया। इसका तो कुछ बिगड़ा ही नहीं। हाँ खुशी खुशी अपना जीवन जी रहा हूँ। इसको जेल क्यों नहीं हुई? ये तो सीरियस मैटर है। अच्छा अच्छा जिस दिन शायद वो हुआ ना कोर्ट का फैसला आया उसी दिन शायद नॉमिनेशन भर रहा है, ऐसा तो नहीं है? ये तो वही है जिसने इसके हाथ में गन दी थी। കാര്യം ചോദിക്കണ്ടേ? അവൻ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് വരുന്നില്ല. സുമ്മാരടാ ആലപ്പുറം പേസല. फ्लैशबैक का दिखा रहे हैं तो This is ridiculous. ഇതിനാണ് ഈ യൂണിയനെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്. ഇവിടെ സ്റ്റൈഫൻഡ് കിട്ടാതെ പിള്ളേര് തെരുവിൽ സമരം ചെയ്യുമ്പോഴാ 3.5 വരെ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം ചുമത്തി അറസ്റ്റും ചെയ്യും. മാം സംതിങ് ഹാസ് ഗൗരി go file your nomination. nomination के लिए। இந்த காலேஜ் பசங்களாம் நம்ம பசங்களா? இது நம்ம பார்ட்டி பசங்க மாதிரி Sir, would that be the extract from the coming election, sir? So please comment on it, sir, please. उसने वैसा ऐसा बोला क्यों? मतलब वो भी उस समय कोर्ट में ही था ना, सब पता है वो चल सर सर कालेला கூப்பிட்ட ஆளு ഞാനെല്ലാം മറന്നു എന്ന് കരുതി. ஹலோ இந்த டிசிபி நம்ம பார்ட்டில இருக்க ஆளுங்க கிட்ட கலாப கேஸ பத்தி क्वेश्चन பண்ணி अच्छा दंगे इसने कराए थे और ये जांच कर रहा था। तो फिर उसने इसी को फंसा दिया था ना और इसे जेल भेजा था। റൈറ്റ്സിൽ മരിച്ചു വീണ 136 പേർ. They deserve justice. அந்த ஆள உடனடியா ஏதா பண்ணலனா டிசிபி थप्पड़ मारने से 136 പേർ. इसका मुंह टेढ़ा हो गया। 24 குழந்தைங்க. फंसाया था उसने।
अच्छा, इससे ने रखा था हाथ, तभी तो उसने कहा था कि इसके साथ बदला ले सकते हो। अच्छा, इसकी बीवी को भी मारा गया है। अच्छा, निशान देख लेता ना उसने। अपर जैन को നിന്റെ തൊട്ട് പിന്നിൽ ഞാനുണ്ട്. इसे पार्टी लीडर भी मार ले। കവലപ്പെടാതെ, ഇത് മുഴുവില്ല, ഇതാ ആരംഭം. आगे से है ना सारे स्टूडेंट्स फॉरएवर। दोनों की तस्वीर बना रखी है अपनी दीवार में, विद्या की भी और सफा की भी। ओह, चलने लग गया। उसके पैर की चोट भी ठीक हो गई। तो यहाँ पर ख़त्म होती है फिल्म जन गण मन, और बहुत ही अमेजिंग फिल्म है। अमेजिंग फिल्म है। मतलब फिल्म की जो स्टोरी है वो बहुत ही अमेजिंग है। और मतलब जिस तरह से फर्स्ट हाफ जैसे खत्म हुआ था, तो आगे लग नहीं रहा था मैं कि इतना सब कुछ इस फिल्म में होगा। हाँ, अनएक्सपेक्टेड था पूरा। ऐसे लगा था कि अब स्टोरी खत्म हो जाएगी। सेकंड हाफ में तो बहुत कुछ था। मतलब मेन तो सेकंड हाफ में ही था। हाँ, मेन सेकंड हाफ में ही था। जो भी रियलिटी थी। हाँ, मतलब ऐसे चीज़ें दिखाई गई थी जो हमने मतलब सोचा भी नहीं था कि इतना सब कुछ इस फिल्म में देखने को मिलेगा आगे। और एक मतलब नई कहानी मिली उस दिव्या की, और मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से उसे दिखाया गया ना उस कहानी को, किस तरह से मतलब जो टीचर्स हैं वो मतलब ऐसे रियल में भी वैसे होता है। और मतलब एक तरह से रियल इंसिडेंट जो होते हैं उन्हीं से मतलब इंस्पायर भी है ये फिल्म ना, क्योंकि बहुत सारे इंसिडेंट इसमें ऐसे दिखाए गए हैं जैसे हमें सुनने को मिलता है, मतलब सारे वही थे रियल। हाँ, तो मतलब एक तरह से रियल इंसिडेंट से इंस्पायर फिल्म मतलब लग रही थी ये पूरी तरह से। और मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से हर चीज़ को मतलब समझाया गया है कि मतलब इसका क्या रीज़न है। और मतलब बहुत सारे जो इंसिडेंट इसमें दिखाए गए, जिस तरह से उस दिव्या का जो केस था, तो किस तरह से मतलब उसकी कास्ट की वजह से जो मतलब कास्टिस्ट प्रोफेसर था वो उसे आगे नहीं बढ़ने देना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि ये भी मतलब और भी जैसे ये भी हमारे लेवल पे आए, प्रोफेसर बने, पीएचडी करे। तो मतलब एक तरह से कास्टिज्म जो होता है मतलब देश में अभी भी है वो, तो उस चीज़ को मतलब दिखाया गया बखूबी। और बहुत सारे होते हैं ऐसे प्रोफेसर जो कि इस तरह से करते हैं, मतलब आगे बढ़ने नहीं देते। हाँ, इस तरह से करते हैं मतलब कि उन्हें आगे नहीं बढ़ना देते। हाँ, तो उस चीज़ को बहुत ही अच्छे से दिखाया गया। और किस तरह से उसने सुसाइड की वीडियो दिव्या ने, और दिखाया नहीं कि उसमें कि 52 बच्चे हैं जिन्होंने सुसाइड किया है। तो वो जो बाकी बच्चे थे होंगे उन्होंने भी इसी वजह से किया होगा सुसाइड। जहाँ लोग बाकी बच्चों को 3-4 साल में मिल जा रही थी पीएचडी की डिग्री, और उसको 7 साल लग गए थे, 7.5 साल। हाँ, और तब भी उन्होंने नहीं दी थी। और उसको बिल्कुल भी मतलब उस पर दया नहीं आ रही थी कि कितना स्ट्रगल करके आई ये लड़कियाँ। और उसकी वो एक घटिया मेंटेलिटी थी उस प्रोफेसर की, और उसी घटिया मेंटेलिटी के चलते उसने उसे आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। कह नहीं रहा था कि चाहे तुम यहाँ 10 साल भी रहो तब भी मैं तुम्हें बिना मेरे साइन के सिग्नेचर के तुम्हें मतलब पीएचडी की डिग्री नहीं मिल सकती है। हाँ, तो मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब इस इशू को इसमें दिखाया गया। और ये भी एक चीज़ मैंने देखी इसमें अच्छे से बताई गई है कि जैसे लोग बोलते हैं जो भी मतलब क्राइम करते हैं कि सीधे उनको सजा दे दो, कि उनको मतलब फांसी दे दो, या जो भी मतलब ऑन द स्पॉट उनको सजा दे दो। तो इसका मेन यही है कि मतलब
मतलब ये भी हो सकता है कि 4 लोग किसी बेगुनाह को पकड़ के किसी को भी तो वो बना सकते हैं, अक्यूज बना सकते हैं किसी बेगुनाह को भी। तो ये चीज भी मतलब अच्छे से दिखाई गई। हाँ, मतलब इसमें कहने का मतलब ये था कि बिना प्रूफ के, बिना इन्वेस्टिगेशन के और बिना कोर्ट में पेशी के किसी को भी पुलिस कौन होती है सजा देने वाली या जनता कौन होती है, मतलब जो मतलब किसी की सजा को प्रूव कर सकता है वो तो मतलब कोर्ट है, जज है, वो क्यों है। हाँ, मतलब जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है, जब तक कोर्ट के सामने पेशी नहीं हुई है, जब तक मतलब वहाँ पे एक तरह से सुनवाई नहीं हुई है, तो उसके बिना हम किसी को भी वो नहीं बोल सकते मतलब कि ये इसी ने वो क्राइम किया है। और उस चीज का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि जो पावरफुल हैं वो तो फिर बच जाएंगे, वो तो आएंगे नहीं सामने, वो हमेशा मतलब जो क्या है कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको आगे कर देंगे, मतलब क्राइम खुद करेंगे, और जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको आगे कर देंगे, उनको मरवा देंगे। जैसे इस मूवी में भी वही हुआ था कि जस्ट बिकॉज की मतलब उसमें ये भी नहीं बोला था कि किसी के हम मतलब देख के बता सकते हैं कि कौन, मतलब वो जजमेंट था कि उस जज का था कि मैं देख के बता सकता हूँ कि कौन दोषी है कि नहीं है। तो शक्ल को देख के, कास्ट को देख के, रिलीजन को देख के लोग ये वो बना देते हैं, प्रेजुडिस बना देते हैं अपने माइंड में कि हाँ ये वो है, अक्यूज्ड होगा। तो मतलब कहने का मतलब यही था ना कि किसी के मतलब किसी के कलर, किसी की कास्ट या किसी के रिलीजन या किसी के जेंडर, कुछ भी हो, उनके बेसिस पे हम कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते हैं। प्रूफ होना चाहिए हर चीज़ का ना, हर चीज़ का प्रूफ होना चाहिए। और जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको भी मतलब बहुत अच्छे से दिखाया गया इसमें। और मतलब समझाया गया है कि किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन होता है, हर टाइप का डिस्क्रिमिनेशन होता है। इवन कि जो मतलब किसी पोस्ट पे भी हैं, अच्छी पोस्ट पे भी हैं, उनके साथ भी कितना गलत होता है ये भी दिखाया गया है। और इसमें मतलब हर इंडिविजुअल की एक मतलब अलग स्टोरी दिखाई गई है। सबसे पहले हमें सबा की स्टोरी दिखाई गई, फिर विद्या की स्टोरी दिखाई गई, फिर उस पुलिस वाले की स्टोरी दिखाई गई, उनके पेरेंट्स की स्टोरी दिखाई गई कि उनकी फैमिली पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके बच्चे को भी मतलब एक्सीडेंट में मतलब मारने की कोशिश की गई है। और लास्ट में जो कोर्ट वो वकील लड़ रहे थे जिस केस को, उनकी अलग स्टोरी दिखाई गई। और हर जगह वही दिखाया गया कि मतलब कितना मतलब डिस्क्रिमिनेशन होता है। और जो मतलब और पॉलिटिशियन का मेन दिखाया गया है कि कितने गलत काम करते हैं। हाँ, मतलब डिस्क्रिमिनेशन हो गया और एक तरह से वो करप्शन भी हो गया, जैसे वो करप्ट रहते हैं। जैसे वो वही जो था पॉलिटिशियन, तो वो मतलब कितना गिर गया था मतलब चुनाव जीतने के लिए। उसने जिस तरह से मतलब ये सब किया, तो वही है मतलब कि पॉलिटिशियन मतलब कुछ ऐसे भी नहीं कह सकते कि सभी ऐसे होते होंगे, पर मोस्ट ऑफ द कुछ पॉलिटिशियन ऐसे होते हैं जो इस तरह से गिर जाते हैं कि जो मतलब किसी भी चीज का कुछ भी बना सकते हैं। और मीडिया वालों को भी दिखाया गया कि मीडिया वाले एक्चुअल में करते क्या हैं, कि जो चीज जो न्यूज़पेपर के लास्ट उसमें होनी चाहिए, पेज में होनी चाहिए थी, वो सबसे फ्रंट में चिपका देते हैं उसको वो करके हाईलाइट करके। जिस तरह से उसने मतलब ये चीज बताई ना वहाँ कोर्ट में, तो कहने का मकसद उसका यही था कि यही खबर कैसे आ गई मतलब फ्रंट हेडलाइन पे। इतनी सारी घटनाएं हो रही है इसी तरह की, इससे बुरी होती है। हाँ, मतलब चाहे ये घटना भी बहुत खराब थी, नहीं होनी चाहिए थी, पर ये था कि और घटनाएं भी होती हैं डेली, तो उनको क्यों नहीं मिलती हेडलाइन। तो उसका कहने का मकसद ये था ना कि इसके पीछे कुछ साजिश है, जानबूझ के दिखाया जा रही है न्यूज़। और मीडिया झूठ भी बोलती है, वो कुछ भी लिख सकती है। तो इसमें मतलब बहुत सारी चीजें जो हैं वो रियलिटी से मेल खाती हैं। जो ब्रेकिंग न्यूज में आती है वही लोग सच मान लेते हैं, जो मीडिया वालों ने बोल दिया। लेकिन उसके पीछे की रियलिटी क्या है उस पर कोई मतलब ऐसे सोचने के लिए मतलब तैयार ही नहीं है। और जिस हिसाब से जो पॉलिटिशियन है या करप्ट पुलिस वाले हैं, मतलब लोगों के सेंटिमेंट का कितना मिसयूज करते हैं, वो अच्छे से दिखाया गया इसमें। उनकी भावनाओं के लेकर कुछ भी मतलब बना दिया जाता है न्यूज़ में, उसको भी अच्छे से दिखाया गया है। तो जो मतलब मीडिया में जो वो है करप्शन, उसे दिखाया गया इसमें। पॉलिटिशियन किस तरह से मतलब अपनी कुर्सी पाने के लिए कुछ भी करने को, मतलब कुछ भी गलत करने के लिए तैयार रहते हैं, उसको दिखाया गया। और मतलब देश में किस तरह से कास्टिज्म काम करता है और उससे कितना मतलब नुकसान होता है जो उस चीज़ को झेलते हैं। और
वो पुलिस वाला था जो पृथ्वीराज, जिनके साथ मतलब भेदभाव होता है, डीसीपी था ना वो, तो उसके साथ भी ऐसे ही होता है। वो और जो ईमानदार होता है उसको भी इस तरह से मतलब फंसाया जाता है और उसे भी जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। तो मतलब इसमें सारी चीज़ें दिखाई गई इस फिल्म में ना, और बहुत ही बखूबी दिखाई गई, और एक्टिंग भी बहुत अच्छे से की गई। एक्टिंग तो बहुत ही अमेजिंग लगी मुझे, लग ही नहीं रहा था कि हम कोई मूवी देख रहे होंगे। चाहे वो पृथ्वीराज हो, मतलब एक तरह से पृथ्वीराज जो हैं उनकी एक्टिंग तो बहुत ही दमदार लगी मुझे क्योंकि एक तरह से मतलब भले ही वो लेट आए फिल्म में, सेकंड हाफ में आए वो, पर उन्होंने मतलब पूरा तहलका मचा दिया था जिस तरह से उनका एंगर था ना, दिख रहा था, मतलब हर एक चीज बोलते हुए ना, पूछने का तरीका था बहुत ही, हर एक चीज वो इस तरह से बोल रहे थे जैसे मतलब खुद दिल से बोल रहे हो। और उस टाइम ही जब वो जज उसी नहीं कह रहा था कि मैं तो समझ जाता हूँ देख के किसी को कि ये, हाँ, तो उस टाइम जब उसने बोला कि सॉरी बोलो तो कितना गुस्सा हो गया था वो। हाँ, तो मतलब हर एक चीज उन्होंने बहुत अच्छे से मतलब वो की ना, अपनी एक्टिंग के जरिए मतलब बहुत अच्छे से उसे शो किया। और बाकी जो अदर एक्टर्स हैं इसमें, पुलिस वाला जो है जिन्होंने उस पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाया, तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छी एक्टिंग की थी इसमें। और सबा तो जो भी है मतलब सबने अच्छी एक्टिंग की है। इसमें मतलब कोई मेन कैरेक्टर नहीं है, सबका इम्पोर्टेंट रोल है, सबका सबकी अपनी इम्पोर्टेंस है। खींची नहीं है फिल्म ये बात। हाँ, फिल्म बिल्कुल भी खींची नहीं है। सेकंड हाफ तो लगता ही नहीं है, सेकंड हाफ को तो पता नहीं चलता मुझे तो लगा मैं बस 5 मिनट देखा तो ये जितनी भी मलयालम मूवी मैंने देखी है आज तक सब मतलब वैसी ही रहती है। हाँ, मतलब मलयालम मूवीज मतलब काफी अमेजिंग होती है, और जिनको सेकंड हाफ होता है बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हो बहुत ज्यादा, मतलब हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते फर्स्ट हाफ में कि सेकंड हाफ में क्या होगा, ऐसी मूवी नहीं बनाते हैं। सेकंड हाफ में काफी चीजें निकल के बाहर आती हैं, और सेकंड हाफ में ऐसी चीजें आती हैं जो हमने सोची नहीं होती, अनएक्सपेक्टेड बिल्कुल भी। तो ओवरऑल फिल्म अच्छी है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट मूवी के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।